Okay, so we'll continue from our last lecture. Okay, I think in last lecture we have just completed the first operation that you can perform on a given set or a given data. Okay, which is arithmetic mean. Okay, so other means are also there. Okay, but not that much important as far as your syllabus is concerned. Okay, you have to focus more on only the arithmetic mean. But again, to calculate the arithmetic mean, okay, there are different formulas. Okay, formulas are similar. Okay, the only approach is different when data is given in terms of say frequency distribution. So then in that case you have a different formula for arithmetic mean. Okay, when data is given in terms of say group frequency distribution, in that case the formula is different. Okay, so remember all these three forms. Okay, तो यही हमारा अप्रोच होगा. Okay, हर एक एग्जाम्पल को आपको अनग्रुप फॉर्म में भी देखना है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी देखना है एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी देखना है. बट आपको मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले या आपको ज़्यादा कुछ उस पर प्रिपरेशन करना ही नहीं है. तो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल स्किप दैट पार्ट. ओके, मीन का पार्ट मैंने लिया था रिलेटेड विद द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट नाउ ऑनवर्ड्स you won't find any example on this group frequency distribution. ठीक है, so we'll stick only with the ungroup data and random data जो आपके पास आता है, and the second part is about random frequency ungroup frequency distribution. ठीक है, now let's come to the second operation. So that arithmetic mean is over now. Okay, let's come to the second operation, that is dispersion. Okay, so first you have to understand what is meant by dispersion and what is the role of dispersion, why we need this dispersion. Okay, because in some cases, okay, average of those given numbers, okay, will not give the full information or will not give the actual information of that data. So in this case we need to check how much data is scattered, okay, from its mean value, and for that purpose specifically we use this dispersion. Okay, yeah, simply if from a data, if you want to identify, okay, the scatteredness, if you want to identify a scatteredness of a given data, okay, or the dispersion of a given data, then you have to use this tool. Okay, and in our syllabus there are these two tools using which you can identify how much data is scattered, okay, from its mean value. Okay, so one is standard deviation and second is coefficient of variation. Okay, so what is the difference between the standard deviation and coefficient of variation? Okay, the coefficient of variation gives the value in terms of percentage, and then it becomes easy to guess the dispersion or the scatteredness in a given data. But just from a standard deviation, okay, it is difficult to identify whether a given data is scattered or not. Okay, just from a standard deviation it's become very difficult to guess whether that given data is actually scattered or not. So that's why we need this coefficient of variation, okay, which actually tells you in terms of percentage that how much your data is actually scattered from its mean value. Okay, so let us first define what is meant by standard deviation. Okay, so consider ungrouped data. Means suppose we have given observation, okay, in this form like say x1, x2, x3. These are the random observations. Then how you find the standard deviation? Okay, so the standard deviation of this data is denoted by sigma, and it is defined as under root of 1 upon k multiplied by summation I runs from 1 to k xi minus x bar bracket square. So summation of xi minus x bar bracket square and then just multiplied by 1 by k, where k is actually the total number of observations. Okay, okay. So here the x bar is actually the arithmetic mean. So here x bar is actually the arithmetic mean that you can easily calculate. Okay, so which is summation of xi. In this case that mean is summation of xi upon summation of total number of observations, which are k. So this is your x bar, and now just and what is your next step? Now just subtract this x bar, okay, from each xi. तो next आपको करना है क्या है, हर एक observation से आपको x bar subtract करना है, and you have to take a square also and add this. That is nothing but summation. ठीक है, so this quantity up to dot last value is xk, तो xk minus x bar whole square. Okay, so this is nothing but a summation xi minus x bar whole square, where I runs from 1 to k. Okay, just find this value, okay, and then multiply this value by 1 by k. ठीक है,
then take the under root, okay, that is the value of standard deviation. Okay, if you want you can take sigma square which is equal to this. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आप पहले कैलकुलेट करो एंड देन यू कैन फाइंड सिग्मा विच इज अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है, ओके. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी, क्योंकि आपको किसी एक फॉर्म में फॉर्मूला याद रखना है. ओके, अगर आपको अनग्रुप फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला पता है या इस केस में अगर आपको फॉर्मूला पता है, ओके, कैन एनीवन टेल मी दिस फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन केस ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बस क्या होगा, आपके पास जो डाटा आने वाला है वो इस फॉर्म में होगा. एक्स एन फ्रीक्वेंसी लाइक से x1 विथ फ्रीक्वेंसी f1, x2 विथ फ्रीक्वेंसी f2 अप टू वॉट, अभी x के तो नहीं होगा यहाँ पे कुछ, तो मैं xl लेता हूँ विथ द फ्रीक्वेंसी fl. ठीक है, रैंडम ले रहा हूँ मैं, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस केस. इस केस में क्या आएगा आपका फॉर्मूला. यस, कैन यू गेस और कैन यू राइट अ फॉर्मूला डायरेक्टली इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे डाटा विथ फ्रीक्वेंसी है. सो विथ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंज होगा, कैन एनीवन टेल मी दैट. विथ फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैलकुलेट होता है. ये कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर रूट ऑफ 1/k एक ब्रैकेट x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अप टू xk माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस, अगर इफ वी हैव गिवन द ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर आपके पास डाटा विथ फ्रीक्वेंसी आता है तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा. What we have to write here? So this 1 upon k is replaced by, k is nothing but total number of observations. But in this case, okay, what is your total number of observation? In this case, what is your total number of observations? ये चेंज आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप हर टाइम पे दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे. Yes, anyone? What is the total number of observations in this case? In case of frequency distribution, यहाँ पे total number of observations क्या है? Capital N or simply summation of fi. Just add all this frequency, okay, that gives you the total number of observations. So this small k is replaced by capital N. Okay, the summation I runs from, okay, यहाँ से 1 से लेकर L तक ही रन करना होगा आपको. Okay, and now can you tell me what is the change here? What is the change here? यहाँ पे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है. बट यहाँ पे x1 कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे x1 कितने बार रिपीट हो रहा है, f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है. मतलब ये सेम वैल्यू कितने बार आपको रिपीट करनी होगी, f1 टाइम्स रिपीट करनी होगी. दैट इज नथिंग बट f1 इंटू x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 को मैंने f1 टाइम्स रिपीट किया है, ओके, एंड देन रिपीट किया एंड दैट वैल्यू इज x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. सिमिलरली x2 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है, x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. बट ये x2 आपको कितने बार रिपीट करना है, ये सेम लॉजिक आपको या ये सेम वैल्यू आपको कितने बार रिपीट करनी है, f2 टाइम्स, बिकॉज देयर आर टोटल, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ x2 इज f2. तो ये कितने बार आपको रिपीट करना है, f2 टाइम्स रिपीट करना है. सो क्या चेंज होगा अंदर, fi इंटू xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. आपको यहाँ से भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये इमेजिन करो कि x1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, x1 अगर आपका 2 बार रिपीट हो जाता है, ओके, तो ये नेक्स्ट इसमें भी क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक बार आ जाएगा. और इन टोटल इसका जो टोटल आंसर होगा क्या होगा, वो क्या होगा, 2 इंटू x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ x1 इंटू x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. सो दैट फॉर्मूला बिकम 1/n समेशन I runs from 1 to L fi in bracket xi minus x bar whole square. fi basically क्या है, the frequency of xi. What is fi? The frequency of xi. So this is the formula in case of second case. ठीक है, so in this case your formula is 1/n. क्योंकि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये स्विच अभी आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज में हमें ये सेम पार्ट रिपीट करना है, बट लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई कन्वर्ट अनग्रुप थिंग इन टर्म्स ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी फॉर्म. ठीक है, so this is the formula for standard deviation in case of frequency distribution. Okay, now
there are some remarks. Okay, so the first is what is the relation between variance and standard deviation? So in general, the standard deviation is equal to under root of the variance. This is the relation between standard deviation and variance. Okay, and always remember variance is denoted by this notation VAR. अगर आपको x का कैलकुलेट करना तो variance of x. Okay, so always remember the square of the standard deviation is actually the variance. Square of the standard deviation is actually the variance. Next. Okay, but so now in previous slide we have already seen that these are the formulas to find the standard deviation of any given data, but for the कैलकुलेशन पर्पज ओके वी नीड टू चेंज दिस फार्मूला. ओके, इस फार्मूला को मैं चेंज करने वाला क्योंकि ये कैलकुलेशन करना हर टाइम पे इतना इजी नहीं होगा. ओके, सो आई हैव टू चेंज दिस फार्मूला. सो जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और एक और फार्मूला मैं आपको देने वाला आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो. दोनों केस में आंसर सेम ही आता है. ओके, सो इट इज जस्ट फॉर अ कैलकुलेशन पर्पज. ओके, हियर आई एम गोइंग टू चेंज दिस फार्मूला. ओके, कैसे करा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ. ओके, अभी आपके पास क्या है? If I take a square on both sides, what we have, the standard deviation is equal to 1 by k summation I runs from 1 to k, okay, xi minus x bar whole square. ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यह अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इफ आई टेक 3, 4, 5 एंड 6, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? सो इट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितने नंबर है टोटल? 4. सो 1 बाई 4. ओके, इन ब्रैकेट आपको करना है क्या? इनका मीन कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द मीन ऑफ 3, 4, 5, 6? सो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ओके, डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट वैल्यू इज व्हाट? सो आई थिंक दैट वैल्यू इज 4.5. सो द मीन ऑफ दिस 4 नंबर इज 4.5. तो आपको करना है क्या? एक्स आई में से आपको मीन सब्ट्रैक्ट करना है. सो 3 माइनस 4.5 स्क्वायर प्लस 4 minus 4.5 square plus 5 minus 4.5 square and plus 6 minus 4.5 square. okay, इसको कंप्लीट करो. दैट विल बी द फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 4 नंबर्स. ऐसे आपको एमसीक्यूज आने वाले या मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ बाद में. सो दे आर द एमसीक्यूज इन योर सिलेबस. ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको फॉर्मूला क्लियरली समझ में आ चुका है. ठीक है, बाद में एग्जाम्पल्स भी हमें देखने ही है. ठीक है, बट तो ये जो अप्रोच है अभी जो आपको मैंने कैलकुलेट करके दिया था, ओके, आई हैव टू चेंज दिस अप्रोच. मुझे एक और सिंपल फॉर्मूला इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू हियर, फर्स्ट आई विल एक्सपांड दिस a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, सो दिस बिकम समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to k. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. करेक्ट? Now separate the summation also, so which is equal to 1 by k summation I runs from 1 to k xi square minus this 2. I think x bar is constant as this summation runs over I, so this x bar is constant. Then what we have here, the summation I runs from 1 to k xi, okay, ठीक है. ओके, प्लस व्हाट? एक्स बार अगेन इज अ कांस्टेंट, सो एक्स बार स्क्वायर. ओके, समेशन के अंदर 1 ही रहेगा. सो आई रन्स फ्रॉम 1 to k into 1 because x bar is constant that you can take outside to the summation. Okay, so I will keep this first part as it is. I will keep this first part as ये कोई प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आने वाला. This is just for your understanding. Okay, so I will keep this first part as it is. Now what I will do here, okay, here I divide this thing by just 1 minute actually. हाँ, यहाँ पे मैंने k मिस किया ना. 1 by k सब सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है मुझे. सो 2 by k और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय k, तभी मैं सोचूं कुछ तो मिस हुआ है. 1 by k, 1 by k, 1 by k. नाउ okay, so 2x bar as it is. Okay, what is value of summation of xi upon k? What is value of summation of xi upon k? 1 by k से आपको सबको मल्टीप्लाई करना है ना. 1 by k से आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 by k समेशन ऑफ xi के नीचे भी आएगा. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi अपॉन k? यस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi अपॉन k? अरे क्या वैल्यू है उसकी?
सारे xi के एडिशन करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या होता है? व्हाट इज दैट? इट इज मीन, करेक्ट? If I add all these xi divided by k, that is nothing but a mean, so it is x bar plus ये x bar square as it is, ये 1 by k वैसा ही है, so 1 by k as it is. Now summation I runs from 1 to k 1, मतलब यहाँ पे 1 को कितने बार ऐड करना है? Add this 1 k times. जब आप 1 को k times ऐड करते हो क्या मिलेगा? k ही मिलेगा, तो this k cancel with this k and minus 2x bar whole square plus x bar whole square, so that will be, so the final formula is 1 by k summation I runs from 1 to k xi square minus, अब ये क्या मिलने वाला आपको? माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको अभी यूज करना है कि ये जल्दी आ जाता है, क्योंकि आपको करना क्या है? डाटा देखो, डाटा से मीन कैलकुलेट करो, ठीक है? सो दिस पार्ट इज सेपरेट, दिस पार्ट इज सेपरेट. तो डाटा से मीन कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आ गई आपके पास. ओके, फिर क्या करो? हर एक का स्क्वायर करो, ऐड करो, multiplied by 1 by k, okay, and then just subtract first value from second value, that is your final answer. ठीक है? I will take some examples also, don't worry, इन सब पे मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ. ठीक है? So just for a calculation purpose here I have changed this formula. तो ये जो फॉर्मूला ये मैंने इसमें चेंज किया है. ओके, आपको बस ये चेंज याद रखना है. ओके, प्रूफ आपको नहीं आने वाला, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वो एक्सप्लेन किया था. So sigma square is equal to, always first calculate sigma square, that's and then you can calculate the value of sigma. Sigma square का पहला जल्दी से कैलकुलेट करो, बाद में आप अंडर रूट लेके भी जा सकते हो. So sigma square equal to 1 by k. So always remember this bracket is separate and this part is separate. So 1 by k summation of xi square, मतलब क्या करो? सारे xi का स्क्वायर करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 1 by k, फिर माइनस करो जो उसका मीन है उसका स्क्वायर. ओके, x bar whole square. Okay, now this is the formula in case of ungrouped data. Just by looking this, can you tell me the formula? Can you tell me the formula in case of frequency distribution? यही फॉर्मूला आप देखो और मुझे बोलो फ्रीक्वेंसी में क्या आने वाला है. अभी तो आना चाहिए. Can anyone tell me this? What is the formula in case of frequency distribution? Yes, बोलो बोलो. 1 upon n. Good. 1 upon n. हाँ. Summation of xi square minus x bar. xi स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? xi स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? fi इंटू xi स्क्वायर, क्योंकि हाँ क्योंकि xi की फ्रीक्वेंसी fi. ओके, तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल x1, ओके, x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? f1 है. आपको यहाँ पे क्या करना है? x1 स्क्वायर कंसिडर करना है, बट x1 स्क्वायर आपको कितने बार लिखना होगा? f1 टाइम लिखना होगा. सो इट बिकम f1 इंटू x1 स्क्वायर. सो इन जनरल इट बिकम fi इंटू xi स्क्वायर माइनस. ओके, यहाँ पे मीन तो वैसा ही रहेगा, बट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, दैट इज नथिंग बट कैपिटल ईयर. Okay, so this is the change in case of frequency distribution. So 1 by n fi xi square minus x bar whole square, where the x bar in this case is different. It is summation of fi xi divided by capital N, total number of observations. So this is all about the standard deviation. Okay, standard deviation का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है. उसके बाद कैलकुलेशन पर्पस के लिए आई एम गोइंग टू चेंज दैट फॉर्मूला, तो वो भी आपको मैंने दिया है. ये सारे फॉर्मूला आप याद रखो कि टिल द एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों चीज़ें रिपीट होने वाली है. इतना ही नहीं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये पार्ट आने वाला है. ओके, मे बी इन another language, but that part is there, standard deviation and mean. This part is also there in probability distribution, that is nothing but in next unit. Okay, so this is all about standard deviation. Now the next topic is coefficient of variation. I already told you that the coefficient of variation actually gives you the value in terms of percentage, so it become easy to us to identify the how much data is scattered, okay, from its mean value, and it is defined as, so it is actually standard deviation upon arithmetic mean multiplied by 100. ठीक है, ये फैक्टर आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ द स्कैटर्डनेस ऑफ अ गिवन डाटा. ठीक है, तो जनरली आप ये यूज करते हो, ओके, टू चेक हाउ मच डाटा इज स्कैटर्ड फ्रॉम अ गिवन वैल्यू और नॉट. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन से इतना कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए आप ये CV फैक्टर कैलकुलेट करते हो, वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आता है कि कितने परसेंटेज में डाटा आपका स्कैटर्ड मतलब हो रहा है. ओके, दैट इज सिग्मा अपॉन एक्स बार multiply by 100. Okay, so we'll take some examples on this part quickly. Yeah, so this is the proof जो मैंने आपको already explain किया है. Okay, so these are the remarks that I already told you.
just 1 minute, yeah. So standard deviation gives the information about distribution of data from its mean value. Coefficient of variation gives the information about distribution of data from its mean value, but in terms of percentage, therefore it is more useful. Okay, this is the problem with standard deviation. Okay, for example, अगर आप किसी भी डाटा का एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो जिससे 0.20 एंड ओके, एंड उस केस में सपोज मीन आपका मीन आपका क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में सीवी क्या आएगा कि कोई भी एक गिवन डाटा है उस गिवन डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन आपने क्या कैलकुलेट किया 0.2, ओके, वो जो भी गिवन डाटा है उसका मीन क्या है 0.5, तो आप इस केस में सीवी कैलकुलेट करो, सीवी क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट वैल्यू इज 40%, ओके। तो आपको सीवी से ये समझ में आ रहा है कि यार 40% में डाटा स्कैटर्ड हो रहा है, बट जस्ट बाय लुकिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द स्कैटर्डनेस ऑफ अ गिवन डाटा, दैट इज द प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से कुछ भी नहीं क्लियर होता कि कितने मतलब वो स्कैटर्डनेस वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा है या लेस स्कैटर्ड है, या एवरेज स्कैटर्ड है, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती, बट अगर आप सीवी कैलकुलेट करते हो तो आपको परफेक्ट समझ में आता है कि ऑलमोस्ट 50% डाटा इज स्कैटर्ड, ओके। तो यहाँ पे स्कैटर्डनेस ज़्यादा है, just by looking this 0.2, okay, you will not understand this the scatteredness of a given data, ठीक है, yeah. And in general, okay, data is scattered means what? There is a variability in the data, okay. Data is scattered means what? There is a variability in the data, and more variability is actually gives you the less consistency, okay. जितना ज़्यादा डाटा आपका scattered होगा, okay, उतना आपको क्या मिलने वाला है, लेस कंसिस्टेंसी आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो मोर सीवी, ओके, मोर सीवी मीन्स मोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स मोर वेरिएबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, उतना ज़्यादा आपको स्कैटर्डनेस मिलने वाला है, उतना ज़्यादा आपको वेरिएबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। सो मोर सीवी मीन्स मोर वेरिएबिलिटी, ओके, बट दैट इंप्लाइज लेस कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड लेस सीवी मीन्स लेस वेरिएबिलिटी मीन्स मोर कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो आपका सीवी लेस चाहिए, ठीक है। And in a similar way, you can write for standard deviation also. Okay, more standard deviation, more variability, less consistency. Less standard deviation, less variability, more consistency. Okay, so the role of the standard deviation and coefficient of variation is actually to check the consistency of a given data. तो जितना less आपका standard deviation और coefficient of variation आ जाएगा, उतनी ज़्यादा आपको consistency मिल जाएगी, ठीक है। Okay, so I will take one simple example on this. Okay, I think few students are in waiting. Okay, so ऐसे आपको ऑनलाइन में क्वेश्चन आने वाले हैं, बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा काउंट लिया, हार्डली 3-4 नंबर का आपको यहाँ पे आ जाता है, बट ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ओके, ऑन दी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ओके। सो दिस इज योर गिवन डाटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन? फॉर्मूला क्या है, ये मैंने चेंज करके लिया है, तो मैं नाउ ऑनवर्ड्स आई विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको भी यही याद रखना है, जो एक्चुअल फॉर्मूला था दैट यू कैन, मतलब आप ऑनलाइन के हिसाब या ऑनलाइन में एमसीक्यू अगर प्रिपरेशन करना तो आप उस केस में याद रखो, वैसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं पे वो यूज नहीं होने वाला, ठीक है। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो एंड व्हाट इज x बार स्क्वायर इज द समेशन ऑफ xi अपॉन k, ओके। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ xi स्क्वायर, x आपको गिवन है, दिस आर योर x, ओके, हर एक का स्क्वायर करो, उसकी एडिशन करो, दैट विल बी समेशन ऑफ xi स्क्वायर। सो दिस इज योर समेशन ऑफ xi स्क्वायर, ओके। सो योर फाइनल आंसर इज 1/k। 1/k मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 2 5 just 1 minute, okay. So which is equal to how many observations are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 1/8 multiply by summation of xi square, which is already calculated, 25 412, okay, and then minus x bar, मीन क्या होता है, सबके एडिशन करो, which is 448 divided by total number of observations. How many observations are there? 8. It's square, okay. Just perform this calculation, that is your sigma square, ठीक है। So that calculation is
दिस 40.5, बट आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है. सो सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ दिस एंड दैट वैल्यू 6.3640. ओके, सो ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू. सिग्मा स्क्वायर है तो आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि निगेटिव भी आता है, बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर करना है. सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ठीक है, ओके. अगेन दैट पॉजिटिव निगेटिव डजंट मैटर हियर, एट देन यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द स्कैटर्डनेस. ठीक है, तो आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट, द स्कोर ऑब्टेन बाय टू बैट्समैन ए एंड बी. ये प्रॉब्लम शायद मैंने लिया था. ओके, इन लास्ट 10 मैचेस डिटरमाइन हु इज मोर कंसिस्टेंट. ठीक है, तो आपके पास डाटा क्या है? द स्कोर ऑफ बैट्समैन ए इन लास्ट 10 मैचेस इज दिस, द स्कोर ऑफ बैट्समैन बी इन लास्ट 10 मैचेस इज दिस. तो यहाँ से डायरेक्टली कौन सा प्लेयर कौन सा प्लेयर ज़्यादा कंसिस्टेंट है या आपको नहीं समझ में आ रहा है. ओके, सो फॉर दैट वी नीड अ स्टैटिस्टिक्स. ओके, ऐसे केसेस में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है. Just by looking this, you can't understand which player is more consistent, which player is less consistent. ठीक है, so what we have to do here? Okay, we calculate the coefficient of variation for player A, मतलब परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी. We also calculate coefficient of variation for player B. Okay, तो अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है, it means player B is more consistent. अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है, it means player A is more consistent. तो आपको बस कंपेयर करना है कि कौन से प्लेयर का सीवी ज़्यादा आता है. जिस प्लेयर का सीवी ज़्यादा होगा वो लेस कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, सो इन सोल्यूशन, ओके, हियर वी हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर प्लेयर ए. ओके, एंड व्हाट इज दैट फार्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लेयर ए अपॉन मीन ऑफ प्लेयर ए मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज द फार्मूला फॉर सीवी ऑफ ए. एंड सीवी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लेयर बी अपॉन मीन ऑफ प्लेयर बी मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, एंड नाउ कैलकुलेट वन बाय वन. तो मुझे सारी चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है. लेट फोकस ऑन ओनली प्लेयर ए. तो प्लेयर ए पे पहले फोकस करते हैं. ये फॉर्मूलाज है दैट. ओके, सो प्लेयर ए के केस में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा ए कैलकुलेट करना है. तो हमेशा आपको पहले सिग्मा ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ओके, दिस इज अवर फॉर्मूला. आप पहले स्क्वायर का कैलकुलेट करते हो, फिर बाद में आपको उसका अंडर रूट लेना है. तो सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो दिस इज द स्कोर ऑफ बैट्समैन ए. हर एक का स्क्वायर करो, उसकी एडिशन करो. ओके, सो दैट इज माय समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो k इज इक्वल टू 10 और मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ एक्स आई भी चाहिए. सो 480 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट विल बी 48. ठीक है, तो सारी चीज़ आप पुट करो. 1 बाय 10 26152. x bar is 480 divided by 10. Just complete this, you will get 311.2, but that is the value of sigma a square. but आपको चाहिए sigma a, so that is 17.6409. और मीन क्या था? मीन क्या था प्लेयर ए का? आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया 48. मीन क्या था? 48. तो अभी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, आपके पास मीन की वैल्यू है. इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट CV फॉर प्लेयर ए. So the CV for player A is actually the standard deviation upon mean, that is 17.6409 upon 48 multiplied by 100, and that value is 36.75. तो ये वैल्यू आप याद रखो, 36.75 प्लेयर A की वैल्यू है. कम टू प्लेयर B, and in a similar way perform the calculation for player B. So I will not repeat this. Same logic, कुछ भी चेंज नहीं है. Okay, and the CV for player B is actually 26.3214. प्लेयर बी का सीवी क्या आता है? 26.3214. तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लेयर ए का जो सीवी है विच इज 36 इज ग्रेटर दैन द सीवी ऑफ प्लेयर बी विच इज 26 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो प्लेयर ए का सीवी ज़्यादा है, मतलब प्लेयर ए, इट मीन्स व्हाट? प्लेयर बी इज मोर कंसिस्टेंट. जिसका ज़्यादा है वो कंसिस्टेंट होगा ही नहीं. ठीक है, सो प्लेयर बी इज मोर कंसिस्टेंट. सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? द बैट्समैन ए हैज़ मोर वेरिएबिलिटी, है ना, दैट बैट्समैन बी. That implies player B is more consistent than batsman A. ठीक है, so this is the you can say the practical application of this concept, coefficient of variation and standard deviation. Okay. Okay, now this is the third question on this same part. Okay, अभी इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए. Okay, it's again a trivial question. You can easily work on this part also. तो क्वेश्चन क्या गिवन है? The arithmetic mean. Okay, and standard deviation of 30 items. So total there are 30 items. Okay, let me take another color. Okay, so total there are 30 items. N is equal to 30. Okay, and आपको क्या गिवन है? arithmetic mean which is 20,
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 3 इन 30 आइटम का. ओके, आउट ऑफ दिस 30 आइटम्स 22. ओके, सो इन टोटल आपके पास 30 आइटम है. ओके, उनमें से एक जो आइटम है, आइटम 22 एंड 15 आर ड्रॉप. पहले आप क्या करो, इन दो आइटम का ड्रॉप करो. ठीक है, उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस केस में आपको अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो पहले मैं क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टोटल देयर आर 30 आइटम्स. ओके, इन विच 2 आइटम्स आर 25 एंड 15. तो मतलब सपोज करो आपका पहला आइटम x1 है, सेकंड आइटम x2 है. ठीक है, एंड लाइक से 28 नंबर का जो आइटम है 28 का x28 है, एंड लास्ट 2 आइटम्स आर 25 एंड 15. मैं रैंडम ले रहा हूँ, इट डजंट मैटर. 25 15 आप बीच में भी ले सकते हो, एंड में भी ले सकते हो, आपकी चॉइस. ठीक है, सो दिस आर टोटल 30 आइटम्स इन विच 2 आइटम्स आर 22 एंड 15. आपको क्या करना है, वी हैव टू डिलीट दिस 2 आइटम्स, एंड इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट न्यू x बार. ठीक है, न्यू x बार कैलकुलेट करना है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, ओके, बट सो व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन यू ड्रॉप, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x बार, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x बार व्हेन यू ड्रॉप दिस 2 आइटम्स. इसको डिलीट करके फॉर्मूला आपको क्या मिलने वाला है, सो दैट मीन इज व्हाट, समेशन ऑफ xi रन्स फ्रॉम 1 to 28 डिवाइडेड बाय 28. जब आप 2 आइटम को ड्रॉप करते हो तो ऑब्वियसली आपकी टोटल क्या आएगी, 28 आएगी. ठीक है, बट ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे xi की समेशन चाहिए अप टू 28, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए. सो दिस फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या रिजल्ट है, इन टोटल 30 आइटम्स का मीन क्या है, 20 है. तो पहले ये रिजल्ट यूज करो. सो सिंस x बार इज इक्वल टू 20, इट मीन्स समेशन ऑफ xi वेयर इन सब क्या सॉरी लेट मी राइट इन इजीएस्ट वे. हाँ, तो x बार इज 20 मीन्स व्हाट, ये जो 30 आइटम है, ओके, ये जो 30 आइटम है टोटल, ओके, इनका मीन क्या गिवन है, 20 गिवन है. इट मीन्स व्हाट, जब आप इनको ऐड करते हो, प्लस 22 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 30 करते हो, दैट वैल्यू इज 20. ठीक है, यहां से आपको क्या चाहिए, x की एडिशन चाहिए अप टू 28. ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो x1 प्लस x2 प्लस अप टू x28 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 30. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 30, करेक्ट, एंड माइनस क्या होगा, ये 22 प्लस 15. ओके, सो विच इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 15, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, आई थिंक इट इज 563. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to 28. तो यहाँ पे पुट करो. So 563 divided by 28, this is the final answer for x bar. So that answer is, I will write, it is 20.10 something 71. ठीक है, ठीक है. So this is the answer of first. Okay, अभी सेकंड क्या गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, so let me erase these things again. और अभी मुझे नेक्स्ट केस में आई हैव टू ड्रॉप अगेन दिस 2 आइटम्स एंड आई नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो इट इज सिमिलर अप्रोच इज देयर. कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस क्विकली. ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, व्हेन यू ड्रॉप दिस 2 आइटम्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा, व्हेन यू ड्रॉप दिस 2 आइटम्स, फॉर्मूला क्या आएगा, 1/28, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है, इन जनरल सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/k समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, 1/28 समेशन ऑफ xi स्क्वायर i रन्स फ्रॉम 1 to 28 माइनस मीन का स्क्वायर. बट मीन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था दैट इज द मीन ऑफ दिस 28 आइटम्स. ओके, तो वो आपको मैंने मतलब कैलकुलेट करके दिया था, तो वो डायरेक्टली या कॉपी करो एंड जस्ट कैलकुलेट. और यहाँ पे आपको अभी कैलकुलेट क्या करना है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर फ्रॉम वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to 28. ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या गिवन है, ये गिवन है 30 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 3. सो 30 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आइटम्स का 1/30 i रन्स फ्रॉम 1 to 28. सॉरी, ऐसे नहीं लिखता हो तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा.
सो एक्स स्क्वायर हर एक का स्क्वायर करना है और ऐड करना है. ओके, फॉर्मूले में बस मैं डाल रहा हूँ, हर एक का स्क्वायर करना और ऐड करना. तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x28 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस x बार, मतलब मीन ऑफ दिस वैल्यूज है ना, ये जो 30 आइटम है उनका मीन. ठीक है, व्हाट इज दैट मीन, मीन इज 20 विच इज गिवन. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या गिवन है, दिस वैल्यू इज 3. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 30 आइटम इज 3, दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/30 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 30 आइटम का स्क्वायर माइनस 30 आइटम का जो मीन है उसका स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा स्क्वायर. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा इज 3, सो 9. करेक्ट. सो जस्ट बाय कंपेयरिंग दिस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू x28 स्क्वायर. यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ पे पुट करो, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, तो ये मैंने ओरली एक्सप्लेन किया, आई विल शो यू दैट एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, सो इन सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन, सपोज दिस 30 items are this, in which 2 items are 22 and 15, correct. And what is given, we have given the mean which is 20 and standard deviation which is 3, correct. तो पहले आपको क्या करना है, हाँ आपको क्या गिवन है, 30 आइटम का मीन 20 है. ठीक है, मीन्स xi when i runs from 1 to 30 upon 30 is 20. ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3 गिवन है. ओके, बट इसका आपको फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर में लिखना है. तो सिग्मा स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 30 आइटम का ही लिख रहा हूँ, 1/30 समेशन xi रन्स फ्रॉम 1 to 30 माइनस मीन का स्क्वायर. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन 30 आइटम में 2 आइटम क्या है मेरे, 22 एंड 15, तो इनको अलग करो. ठीक है, तो इनको अलग करो. तो नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया है, 22 एंड 15 को अलग किया है, बाकी चीज़ें एज इट इज़. और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर में से 2 आइटम को आप अलग करो, बाकी चीज़ें एज इट इज़. सो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट. तो फर्स्ट यहाँ से आपको समेशन ऑफ एक्स मिल जाएगा अप टू 28, और सेकंड यहाँ से आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अप टू 28. ओके, देन यू कैन फाइंड द मीन when these 2 items are dropped, and that mean is what, this divided by 28. And also you can find, ये हमने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी. Also you can find the standard deviation which is 28 आइटम का, so which is 1/28 i runs from 1 to 28 xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर. अभी ये जो मीन आपको यहाँ पे लेना है, ये 28 आइटम का मीन लेना है, तो जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस कैलकुलेट किया है. ओके, सो डोंट कंफ्यूज विद द गिवन मीन, या फिर आपने 28 आइटम के लिए मीन कैलकुलेट किया है, इसमें कंफ्यूजन मत करो. एंड देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to 28 विच इज 11561. पुट करो, सॉल्व करो, टेक अंडर रूट, दैट इज द फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये थी आपकी फर्स्ट केस, जहाँ पे आपने उन 2 आइटम को 22 एंड 15 को आपने क्या किया था, रिमूव किया था या डिलीट किया था आप ऐसे, और फिर उस केस में आपने अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया. क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था, ओके, नाउ यू हैव टू रिप्लेस दिस आइटम नंबर 22 by 8. अभी उन्होंने रिप्लेसमेंट दी है, जो प्रीवियसली जो 22 आइटम था उसको आप 8 से रिप्लेस करो बाय द वैल्यू 8. जो आपका 15 जो आइटम था उसको रिप्लेस करो बाय 70. अगेन एंड इन दिस केस कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी फिर से 30 आइटम का ही अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, फिर से 30 आइटम का ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. बट चेंज क्या हो रहा है, प्रीवियसली यहाँ पे 22 था, अभी उसके जगह पे 8 लेना है. प्रीवियसली यहाँ पे 15 था, अभी उसके जगह पे 17 लेना है. सो बेसिकली आपको इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो क्या है, सिंपल है. तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सबकी एडिशन, बट उसमें से 28 आइटम तो आपके पहले ही मतलब प्रीवियस आइटम ही है, और आपने 2 आइटम को ऐड किया है 8 एंड 17. ओके, और ये जो समेशन है, समेशन एक्स आई वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to 28, ये भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है. ठीक है, सो जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर एंड कैलकुलेट एक्स बार, सो दैट न्यू मीन इज 19.6. अभी आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 1/k समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. अभी आपके आइटम क्या है, 30 आइटम है. ओके, एक्स आई स्क्वायर मतलब आई रन्स फ्रॉम 1 to 30, उसमें से 28 आइटम का तो आपको पहले ही पता है. ओके, विच इज 11561. 2 आइटम आपने न्यूली ऐड किए, सो विच इज 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस ये जो मीन होगा, ये जो मीन होगा, ये कौन सा मीन होगा, 30 न्यू आइटम का मीन होगा विच इज 19.6. इसमें कंफ्यूजन मत करो, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी मीन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो. सो 19.6 एक्स आई स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 11561. पुट करो, सॉल्व करो. ठीक है, देन जस्ट टेक द अंडर रूट, सो दैट वैल्यू इज 3.6019. ठीक है,
तो ये इट्स लाइक अ पजल, ऐसे क्वेश्चन आपने मतलब कभी ना कभी अटेम्प्ट किए होंगे, इट्स लाइक अ पजल, ठीक है, बट आपको एक प्रॉपर राइटिंग में भी इसको लिखना है एंड दिस इज द फाइनल आंसर 3.6019, ठीक है। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? बोलो, एनी डाउट? कुछ डाउट्स है क्या? टेल मी यस और नो, एनी डाउट? या कोई ऐसा टॉपिक है जो फिर से रिप्लेस? ओके, ठीक है, सिंपल है चीज़ें, इसलिए और हमें अभी लेना ही होगा फास्ट बिकॉज ओके आपको समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल क्या क्या होने वाला है। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन, ओके क्या क्या कंप्लीट किया है, लेट मी रिपीट क्विकली। अरिथमेटिक मीन हो गया कल का लेक्चर, आज का लेक्चर आपका डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो कंप्लीट हो गया, उसके सारे एग्जांपल भी हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मूवमेंट, ओके, एंड सो फ्रॉम दिस टॉपिक और एंड ऑब्वियस क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई वी नीड मूवमेंट। जैसे अरिथमेटिक मीन से आपको एवरेज समझ में आता है ना, डिस्पर्शन से आपको स्कैटर्डनेस समझ में आता है, वैसे मूवमेंट से आपको जो आपको क्या समझ में आता है, जो आपका डाटा है ओके उसका नेचर समझ में आता है। ओके, सो दैट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट डाटा यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम द टर्म मूवमेंट। कैसे सब कुछ आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, बट एक्चुअली हियर यू कैन फाइंड the distribution of a data, okay, using the concept of skewness and kurtosis, and for this skewness and kurtosis we need this moment। या सिंपली मोमेंट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोमेंट से आप जो आपका डाटा है उसका नेचर कैलकुलेट कर सकते हो, डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब कि अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, ओके, अगर ग्राफ आपका ये आ जाता है देन वी कॉल इट एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अगर ग्राफ आपका ये आ जाता है देन पॉजिटिव स्क्यूनेस। ओके, ग्राफ अगर आपका ये आ जाता है देन नेगेटिव स्क्यूनेस, लाइक दिस। ओके, सो दिस नेचर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ओके फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ओके, राइट नाउ लेटर ऑन मैं आपको ग्राफ से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। राइट नाउ फर्स्ट वी विल डिफाइन द फॉर्मूले फॉर मोमेंट, देन we'll see the physical significance of this moment, मतलब movement का actual use क्या होगा ये भी हमें learn करना है। Okay, so first let us understand the definition of movement। Okay, so the movement, the earth movement, so again there are infinitely many movement that you can calculate, so the earth movement about mean is actually denoted by mu r। so how you read this mu r, this is the movement, this is the earth movement अबाउट मीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीन के अबाउट है। ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू आर। आर मतलब ये जो भी नंबर है उसके उस नंबर से आपको पावर या वो नंबर आपको पावर में लिखना है, ठीक है। एंड हियर आई कंसिडर दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू वांट यू कैन कंसिडर इन केस ऑफ योर रेगुलर अनग्रुप डाटा, तो उस केस में क्या आएगा 1/k समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to k एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू आर। तो अभी आपको पता फ्रीक्वेंसी में लिखो या रेगुलर फॉर्म में लिखो, दोनों स्विच आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n ओके एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू आर। सो इट्स बेटर टू राइट विदाउट फ्रीक्वेंसी। सो आई विल चेंज दिस क्विकली, आई डोंट वांट इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का गेस आपको हो जाएगा। सो व्हाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो आई विल फॉलो द सेम नोटेशन, जस्ट गिव मी 1 minute। ठीक है, एंड हियर ऑल्सो आई नीड टू चेंज दिस थिंग। इट्स बेटर टू कंसिडर ऑल दिस फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ is without frequency। okay, yeah, oh, so this is the formula, the mu r is equal to 1/k the total number of observation I runs from 1 to k x I minus x bar raised to r। अगर फ्रीक्वेंसी में आता है तो k से k रिप्लेस होगा कैपिटल N से, और यहाँ पे fi से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट विद दिस मूवमेंट। ओके, दैट इज द मूवमेंट अबाउट एनी रैंडम नंबर। ये अबाउट मीन था, अगर आप एक रैंडम नंबर लेते हो देन वी डिनोट दैट अर्थ मूवमेंट बाय म्यू डैश ऑफ आर। तो पहले तो आपको इन दोनों नोटेशन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। म्यू ऑफ आर का मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट अबाउट मीन। म्यू डैश ऑफ आर का मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट अबाउट एनी अदर नंबर। ओके, अदर देन मीन, अदर देन मीन।
दैट इज द सिंपल वर्ड। अदर देन मीन में जो भी मूवमेंट होगा, अदर देन मीन का जो भी मूवमेंट होगा दैट इज डिनोटेड बाय म्यू डैश ऑफ आर एंड द फॉर्मूला इज सिमिलर। ओके, अबाउट मीन में यहाँ पे एक्स बार आपको सबट्रैक्ट करना है हर एक ऑब्जर्वेशन से, बट अबाउट एनी अदर पॉइंट यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मूला है। अबाउट मीन तो यहाँ पे एक्स बार आएगा, अबाउट अ पॉइंट यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ रिलेशन ओके बिटवीन दिस टू मीन। ओके, वन इज मूवमेंट अबाउट मीन एंड सेकंड इज मूवमेंट अबाउट अ नंबर। इन दोनों में एक रिलेशन है। ओके, सो दैट रिलेशन इज व्हाट, किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी गिवन डाटा के लिए μ1 आपका हमेशा 0 आता है। ओके, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द एग्जांपल आल्सो फॉर, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 लेके, मतलब दिस इज म्यू आर, व्हेन आई पुट r इक्वल टू 1 यू विल गेट μ1 इज इक्वल टू 1 बाय k समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू k ओके xi माइनस x बार रेज टू 1। ठीक है, दिस इज योर μ1। सो दैट μ1 इज ऑलवेज 0। यू कैन इजिली, यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो। ओके, या आप डायरेक्टली डाटा से भी प्रूव करो। सो दिस μ1 इज ऑलवेज 0। ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं होगा जहाँ पे μ1 आपका नॉन जीरो आ रहा है। आप ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, मैं करने भी वाला हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट, μ2 जो होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर μ2 विच इज 1 बाय k समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू k, पावर में 2 होगा, बस इतना ही चेंज है, xi माइनस x बार रेज टू 2। okay, so this is your μ2. so this μ2 can be calculated using the values of μ2 dash and μ1 dash. ठीक है, ये रिलेशन याद रखो। इसका एक्चुअल यूज कैसे होगा, कैसे सब कुछ प्रॉब्लम में आने वाला, आई विल एक्सप्लेन डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रॉब्लम। ओके, एक एग्जांपल लेके ये सारी चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। So that μ2 is defined in terms of μ2 dash and μ1 dash. Okay, so this proof is also not there in your syllabus. Okay, it takes time. ये simple calculation है इन दोनों में। Okay, you can easily refer that. So μ2 is equal to μ2 dash minus μ1 dash whole square. अब ये फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कैसे भी करके किसी ना किसी ट्रिक से या लॉजिक से आप याद रखो। नेक्स्ट इज द μ3. ओके, द फॉर्मूला फॉर μ3 इज व्हाट, सारी चीजें सेम रहेगी, रेस्ट टू 3 आ जाएगा। Okay, and that can be calculated using the values of μ1 dash, μ2 dash and μ3 dash, and that relation is μ3 equal to μ3 dash minus 3 μ1 dash μ2 dash plus 2 μ1 dash cube. And the fourth moment, that is μ4, is equal to that can be calculated using the values of μ1 dash, μ2 dash, μ3 dash and μ4 dash, and this is the formula. Okay, तो simply मैंने आपको क्या दिया है, you can find the moment about mean, you can find moment about mean using the moment about other than mean. ठीक है, and this is the relation between them, and this is called as the first moment, this is called as second moment, μ2 मतलब second moment, μ3 मतलब third moment, and μ4 मतलब fourth moment. Okay, and these are called as the first four moment, the first four moment about mean. These are called first four moment about mean. अगर यहाँ पे डैश आता है तो आप उसको क्या बोलोगे, first four moment about a point, about a point. ठीक है, इज दिस क्लियर? these are just the formula, these are just the formula. इनका रोल क्या है? ओके, why we need is μ1 μ2 μ3, ये करना क्यों है कैलकुलेट, बिकॉज लेटर ऑन आई एम गोइंग टू डिफाइन द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये दो चीजें मुझे डिफाइन करनी है और वहां पे मुझे ये सारी चीजें चाहिए, μ1 डैश क्या आता है, या सॉरी μ1 μ2 μ3 μ4 क्या आता है, बिकॉज दैट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस ओनली। और फिर आपको जो आपका गिवन डाटा है उसका नेचर समझ में आता है। ओके, और उसका ग्राफ समझ में आता है, सिंपली ग्राफ समझ में आता है। नेचर इन द सेंस, नेचर इज सिमिलर टू अ ग्राफ, ग्राफ समझ में आता है तो नेचर समझ में आता है, नेचर पता है तो आपको ग्राफ पता होगा। सो बोथ आर सिमिलर। सो फ्रॉम द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस यू कैन डायरेक्टली प्लॉट दैट ग्राफ। ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। मतलब आपको एक नेचर ही समझ में आता है कि डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या एक साइड में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है। ओके, मतलब फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा है, सेकंड हाफ में लेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या सेकंड हाफ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फर्स्ट हाफ में लेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ओके, सो फर्स्ट आई विल डायरेक्टली गिव द फॉर्मुलेस फॉर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मुले देने वाला हूँ सबके, और बाद में स्क्यूनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कर्टोसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी होगा नहीं। ओके, so let me just define the formulas and then we'll stop. Okay, so mean. Okay, so now there is one more approach to calculate arithmetic mean for any given data. That approach is capital A. capital A क्या था, ये प्रीवियस टॉपिक में आपने मूवमेंट का एक फॉर्मूला लिखा था, मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट।
तो वो पॉइंट आपका ए था. ओके, एंड दोज मूवमेंट्स आर से μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश. इतना याद रखो, डैश आता है मतलब अबाउट अ पॉइंट का मीन है. ठीक है, तो अगर आपके पास ये 4 वैल्यूज है, या अगर आपके पास μ1 डैश की वैल्यू है, या डायरेक्टली आप एज्यूम करोगे क्वेश्चन में मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट आपको गिवन है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर सकते हो. दैट मीन इज व्हाट? कैपिटल A प्लस μ1 डैश, कैपिटल A प्लस μ1 डैश. सेकंड इज, इतना ही नहीं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ μ2. μ2 क्या है? मूवमेंट अबाउट मीन है, इट इज नॉट अबाउट अ पॉइंट, क्योंकि डैश नहीं है. ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ μ2. नाउ द नेक्स्ट 2 थिंग्स आर कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ओके, अभी मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, बाद में आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लर्न कर सकते हो. सो द बीटा 1, that is called as the coefficient of skewness, and it is defined as μ3 square upon μ2 square. Remember, skewness and kurtosis is defined by using moment about mean. ठीक है, skewness and kurtosis is defined by using moment about mean. So beta 1 is μ3 square upon μ2 square and beta 2 is μ4 upon μ2 square. ठीक है, so in next lecture we'll directly see some examples on this. Okay, here we'll stop. You can put your roll number in chat box for the attendance. Please put your roll number in chat box for the attendance.